welcome back to my channel. And in this video, I'm gonna talk about my journey and my experience of coming to Korea without GKS. मैं नहीं मानता। Yes, it might seem very hard or difficult, or sometimes some people think it's impossible to come without GKS to Korea. But yes, hear me out. Yes, you can come to Korea without GKS. I also did it, and I will share you how I did it. I will share my journey and my experience of coming to Korea as a Korean language student on D4 visa, and then my transition of from Korean language program to undergraduate in Korea itself. So let's get started. And before starting the video, make sure you have subscribed to my channel and press that bell icon so that you can get the notification of my videos. Without further delay, let's get into the video. So, I came to Korea on June 2022 and it's been almost 3 years in Korea, and this journey have been filled with adventures, new experiences, sometimes a lot of homesickness. Before getting into that, let's talk about what actually inspired me, because a lot of people ask me like, why did you go to Korea? Because of BTS? Oh, you must have gone to Korea for K-pop. No, guys. I used to love K-drama that time, and I was also like a stan for BTS, but they are not the actual reason of going to Korea. They were somewhere some small reasons or some interest, but it was not the main reason to go to Korea. What inspired me to go to Korea was my interest in Korean culture and Korean language, and I was very interested about how the Korean education system and Korean environment is for international students. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब School, I completed my high school on 2021, and I was searching for options because मैंने सिर्फ कोरिया के लिए अप्लाई नहीं किया था. कोरिया was not my first option. Everybody is going like, सब चले जाते हैं, कनाडा हो गया, यूके हो गया, तो I was thinking I should go something different. तो मैंने सोचा कि उस टाइम पे के ड्रामास का इतना ज़्यादा क्रेज था, एंड आई यूज्ड टू लव के ड्रामास. आई स्टिल लव के ड्रामास. तो मैं सोचा व्हाई नॉट कोरिया, क्योंकि कोरिया बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं एंड इट माइट बी एडवेंचर, इट माइट बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी. तो आई चोज कोरिया, दैट्स वाई. एंड मैंने जीकेएस के लिए अप्लाई किया था. जिसको जीकेएस नहीं पता, जीकेएस ठीक है, ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप which is sponsored by Korean government, and it's a very competitive scholarship. It's a fully funded scholarship, so everybody wants that scholarship, but बहुत competitive, especially undergraduates के लिए it is competitive. When I was applying for GKS, only 3 seats were allotted for India and सिर्फ 3 seats all over India. Imagine how competitive it would be, क्योंकि it's fully funded. वो आपके एयर फेयर का, आने जाने का, आपके accommodation, stipend सब स्पॉन्सर करते हैं, तो इट इज़ कॉम्पिटिटिव, राइट. तो मेरा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, पर आई डिडंट लूज होप एंड मैंने सोचा कि आई विल गो सेल्फ फंडेड. आई मरना तेरे को डर नहीं लगता? नो इट्स अ वेरी बिग थिंग, बट मैंने सोचा सबसे ईजिएस्ट वे इज टू गो लैंग्वेज प्रोग्राम, क्योंकि यूजुअली लैंग्वेज प्रोग्राम की एक्सेप्टेंस रेट इज हायर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो. देन आई डिसाइडेड कि मैं कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम में जाऊंगी. सो आई डिड रिसर्च. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीबडी, आई वॉन्ट टू से, अगर आप प्लान कर रहे हो कोरिया आने के लिए, चाहे आप ट्रैवल के लिए आ रहे हो, चाहे आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, चाहे आप जॉब करने के लिए आ रहे हो, यू नीड टू डू रिसर्च बाय योर सेल्फ. बिकॉज अगर आप, अब तो एजेंट्स हैं, उस टाइम पे इतने एजेंट्स नहीं थे कोरिया के लिए, एंड दे यूज्ड टू चार्ज अ लॉट, ठीक है. सो आई वुड से, अगर आप बाय सेल्फ आ रहे हो, चाहे सेल्फ फंड पे आ रहे हो या आपका सब कुछ सेल्फ है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अपने लिए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से. कि लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि आप बता दो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी. आई कैन सजेस्ट यू गुड यूनिवर्सिटीज़, बट योर रिसर्च इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा आप जहाँ जा रहे हो उसके बारे में, या आपको कहाँ से कैसे एक्सप्लोर करना है अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, अपनी लाइक अपने हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ कैसे देखनी है, तो आप
फंस जाओगे, बिकॉज यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट, यू नीड टू डू रिसर्च। एंड मैंने भी रिसर्च की थी, अच्छी खासी रिसर्च की थी, एंड मैं कोई एजेंट से नहीं जा रही थी। तो एंड आई वॉज जस्ट 18, एंड मैंने कभी अपने घर से बाहर पैर नहीं रखा था, कि आई नेवर लिव्ड आउटसाइड माई प्लेस। मैं बहुत कंफर्टेबल थी अपने घर पे, शुरू से घर पे रही हूँ तो मैंने कभी किसी और सिटी में नहीं गई थी पढ़ने के लिए। बट आई डिसाइडेड टू गो टू कोरिया, वेयर मैं किसी को नहीं जानती थी, ठीक है, किसी को भी नहीं। एंड मैंने सिर्फ कोरिया के ड्रामास में देखा हुआ था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, और मैं बहुत डरी हुई थी, मेरी मम्मा बहुत डरी हुई थी, बट आई वॉज वेरी श्योर अबाउट माई रिसर्च। मैंने रिसर्च की थी, मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ खुद ढूंढी है एंड इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट की है। तो उस कोरिया में वेल रेप्यूटेड जो यूनिवर्सिटी है वो स्काई यूनिवर्सिटी। स्काई इज लाइक S स्टैंड फॉर सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, K स्टैंड फॉर कोरिया यूनिवर्सिटी एंड Y स्टैंड फॉर योनसे यूनिवर्सिटी। ये 3 टॉप यूनिवर्सिटीज है, सिर्फ कोरियंस के लिए नहीं, कोरियंस आर ऑल्सो वेरी क्रेजी अबाउट दिस 3 यूनिवर्सिटी, एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो हैं ही, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। पर ऐसा नहीं है कि बाकी सारी यूनिवर्सिटी खराब है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी है। आपको अपनी रिसर्च करनी है कि आपको कैसी यूनिवर्सिटी चाहिए, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होंगी वो एक्सपेंसिव होंगी। सोल की यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेंसिव है, सोल का लिविंग एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सोल इज़ एक्सपेंसिव। तो मैंने अप्लाई किया था कोरिया यूनिवर्सिटी में फॉर लैंग्वेज प्रोग्राम। डेडलाइंस चेक करनी पड़ती है आपको, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेकआउट करनी पड़ेगी, आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए आपको कैसे करना है। एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो on how to apply for a Korean language program, and if you want that video please comment down, you have to comment down, ताकि मेरे को पता चले that you really want that video and I will make it। तो मैंने कोरियन यूनिवर्सिटी और यंगनम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी। यंगनम इज इन देगू एंड कोरियन यूनिवर्सिटी वॉज इन सोल, लाइक इज इन सोल, ओके। तो मेरे को था कि मैंने पहले दोनों में एप्लीकेशन डाली, एंड कोरियन यूनिवर्सिटी में आई हैव टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स बाय कुरियर, एंड यंगनम में दैट टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोविड जस्ट ख़त्म ही हुआ था, तो दे सेड कि आई कैन सेंड माई डॉक्यूमेंट्स बाय email. Now they wanted by courier I think, but that time they wanted by email. तो मैंने email कर दिया था, and कोरिया यूनिवर्सिटी को मैंने courier कर देते अपने documents, and they asked the original and document apostilled, please वो तुम्हें documents वापस नहीं करते हैं अगर आप रिजेक्ट हो गए तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू टेल देम कि आपको बहुत सोच के करना पड़ता है। ये चीज़ आई विल एक्सप्लेन इन द एडमिशन प्रोसेस वीडियो। सो after that I got acceptance from both the universities, but now it was my time to decide कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, and that was a tough task. So मैंने कंपेयर किया प्राइस, you have to see your own budget too, you know. So मैंने, क्योंकि लैंग्वेज के लिए लोन्स नहीं मिल रहे थे, स्टूडेंट लोन, सो मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर यंगनम, बिकॉज यंगनम वॉज गुड यूनिवर्सिटी, अफोर्डेबल ऑल्सो, एंड जितना आई वुड पे इन यंगनम फॉर the dormitory and the tuition fees, it was twice in Korea University. I love Korea University. I wanted to be in that one of the university, but you know I have to see my cost too. तो इसलिए मैंने Yangnam choose किया, and I do not regret it. I love that university. मैंने वहाँ पे 1.5 साल spend किया language में, and they were really good. Dormitory was good. I made amazing and beautiful friends there, and I met amazing teachers there. Yangnam University had my heart, okay. I love that. I miss Kasala and Sherlin. So then after doing 1.5 years of my language, I did till level 4. I shifted my university to Busan for my undergraduate. So see, you must be wondering why I changed the university. तो मैंने यूनिवर्सिटी चेंज इसलिए की थी बिकॉज माई यूनिवर्सिटी वॉज नॉट प्रोवाइडिंग द इंग्लिश ट्रैक, एंड आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ फॉर डूइंग माई अंडर ग्रेजुएशन completely in Korean, because it is tough. You need topic, and then I know I'm not very strong with my Korean, like very strong that I can do academics in it. तो मैंने इंग्लिश ट्रैक वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी। ऐसी बहुत यूनिवर्सिटीज़ है कोरिया में जो आपको आपकी जो एजुकेशन है अंडर ग्रेजुएट की वो टोटली इंग्लिश में कराती है। वो ट्रैक इंग्लिश होता है, 2 ट्रैक्स होते हैं, इंग्लिश एंड कोरियन। तो आई चोज क्योंगसंग यूनिवर्सिटी। देयर वाज अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी दैट टाइम, बट बहुतों की डेडलाइंस ख़त्म हो गई थी, बंद हो गई थी। तो मेरे को फिर आई लेफ्ट विद 2 universities, that was Cheongdam University in Daejeon
and Kyongsung University in Busan, which is currently my university. तो Chongnam University जो थी वहाँ मैंने पर्सनली जाके पहले एप्लीकेशन सब कुछ करा, फिर आई डिड माई रिसर्च अगेन, ओके. सो देन उसके बाद मैंने वहाँ पे एप्लीकेशंस दोनों में डाली. देन दे कॉल फॉर इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट. दे विल आस्क यू व्हाई यू वांट टू बी इन आवर यूनिवर्सिटी, हाउ यू फाउंड आउट अबाउट आवर यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी के लिए कैसे बेनिफिशियल हो, व्हाट कैपेबिलिटीज यू हैव, व्हाट सर्टिफिकेशंस यू हैव. यूनिवर्सिटी आस्क यू, ओके. तो मेरे को चोंगनम में आई हैव टू गो इन पर्सन फॉर द इंटरव्यू एंड आई वेंट टू डेजॉन एंड दैट इंटरव्यू वॉज अमेजिंग. आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट एंड मैं बहुत नर्वस थी, but it was a very good interview and मुझे पता था कि I got in, you know that you get the feel from the interview itself कि हाँ मेरा हो गया यहाँ पे. Then I did an online interview in Kyongsung and it was, unfortunately, I cried after that interview and I will tell the story some other day because this video gonna be very long then. So I was not sure about Kyongsung but I love Busan, so I wanted to be in Busan, but Chongnam was also a very good university and दोनों की ट्यूशन फीस सेम थी मेरे लिए. सो इट वॉज माई टेक एंड आई गॉट एक्सेप्टेड इन बोथ ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड देन इट वॉज माई टाइम टू डिसाइड. तो मैं आई डिसाइडेड इन इट वॉज इन 2023 when I applied in May and I got in and I got my result in July and I was very happy that I got both of the university. But उसके बाद I chose Kyongsung University because it was in Busan. Just because it was in Busan, guys. I love Busan because it was like it's my favorite city in Korea. तो मैंने Busan choose किया, Kyongsung, and I started my journey from September 2023 in Busan. And first year की फिर मेरी like fees pay हुई, then it confirms my registration and everything. But अब you must be wondering कि then how I'm bearing the cost of my university. तो university में क्या होता है, जैसे for first semester I paid my fees, but after that my scores are being evaluated and then merit based scholarship मिलती है मुझे हर semester. तो first semester में मेरे आए थे I think 4.3 GPA out of 4.5. तो आपके जितनी GPA आती है उस हिसाब से then they give you scholarship, ठीक है. तो they gave me scholarship and discount on my tuition fees. तो मुझे 80% मिली थी फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे. सो मेरी फीस कम हो गई थी, ओके. एंड सेकेंड सेमेस्टर में आई स्कोर्ड like 4.5 out of 4.5. Yes, I'm proud of myself. बहुत मेहनत की थी. So उसमें I got 100% scholarship for my next semester. ऐसे ही अब last semester I scored 4.2 out of 4.5. Then I again got 80% scholarship. And but हमारी यूनिवर्सिटी ने अब रिसेंटली ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया है कि जिसको भी 30% से नीचे की स्कॉलरशिप मिलेगी उसको दे विल रिफंड द अमाउंट. मतलब 30% से ऊपर जिनको मिली है उनके तो ट्यूशन फीस से कम हो जाएगा, पर जो 30% से नीचे के हैं उन्हें पूरी फीस भरनी पड़ेगी. एंड देन इन नेक्स्ट मंथ लाइक अगर जैसे स्टार्टिंग मंथ है सेमेस्टर का उसमें दे विल रिफंड दैट 30% ऑफ दैट ट्यूशन फीस. ये बहुत न्यू आया हमारी यूनिवर्सिटी में एंड बहुत सारे बच्चे लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर वेरी अपसेट विद इट क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट भरना पड़ेगा. बट सो दिस इज हाउ माई जर्नी लुक्स लाइक. मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी बनाए हैं अपने यूनिवर्सिटी में. मेरी क्योंगसंग में इंडियंस अब कम है, अब तो आने लग गए. When I was in Kyongsung, like when I first got into Kyongsung in 2023, I was the only Indian in my university, and everybody used to think I'm Nepalese. I'd like to give some advice for the people who the students, for everyone who want to come to Korea. I will say that GKS is not the only way. There are other ways to come to Korea, and if you come to Korea on your self fund, you still have ways to make money and not ask money from your parents. You can do part-time jobs. I will say that's not the only way. Please don't lose hope and do not give up. If you really want to come here, make sure you have a valid good reason. Comment down and drop your questions and other queries if you have related and what you want to. You are watching till the end. Thank you so much for being so patient and thank you so much for being interested in my video. Also, if you are my subscriber, thank you so much for being the part of my YouTube family, and if you are not, what you're waiting for? And follow me on Instagram for the daily updates. That's all for today's video, guys. I hope you like this video. I love you guys. Thank you so much.
Bye bye. See you in the next video. Till then, stay happy, stay fit. Bye.